Am I audible? मेरे बात सुनाई दे रहा है? Yes, sir. We will wait for 2 minutes so that rest of the students could join, and then we will start the class. Is it clear, everybody? Yes, sir. Okay, sir. Okay, so I am not more waiting because already we are 4 minutes. The class has been started, and we are not starting the class. So let us start the class. Today is the second lab. और आप लोगों को पहला जो लैब हुआ था उसमें आप लोगों को हमने स्पाइस के बारे में एक टास्क दिए थे. Everybody has given a task of spice. Did you Yes, sir. remember? Yes, sir. Okay. So I will give the Google Classroom link today for VLSI lab, and by Monday you have to submit the VLSI lab first worksheet, that is assignment, that is on Spice, introduction to Spice. So by Monday 5 p.m. you have to submit your assignment there. I think hope everybody has been completed. So those who have not completed, please complete it within 2 days, Saturday and Sunday, and submit it by
Monday 5 p.m. After 5 p.m. the submission will be closed and there will be no acceptance of the submission. So I will share the Google Classroom link today and please submit your assignment there. So that is for the lab assignment. Now what we are going to study today in our lab. For that reason, just a minute, I'm just wanting to tell you. So I'm sharing you So today we will do this problem. Have you everybody seen in this thing in your computer, in your mobile? Are you watching the circuit diagram? Yes, sir. Yes. So today our program will be design an inverter with resistive pull up and NMOS pull down and find the transfer characteristics. So this will be today's experiment. We will do today's experiment by this, and we will generate the netlist here, and then we will get the our output, and the output will be somewhat like this. I think. Yes, it will be like this, somewhat like this. So let us start with our today's experiment. So this will be the graph, output graph of the experiment. This will be the circuit diagram of the experiment, and this will be the program of the experiment. So you can draw the circuit diagram in your copy. First, please draw the circuit diagram in your copy. If you have finished drawing the circuit diagram, then we will start our lab procedure. Today is our second experiment. Our second experiment is to design an inverter with resistive pull up and NMOS pull down and find the transfer characteristics. So I will give you 2 minutes to draw the circuit diagram in your copy. If you have been finished, then please tell me that I have finished, sir. Sir, done. सबका हो गया? No, sir. जल्दी करो.
Hello. Yes, sir. हो गया सबका? Yes, sir. क्या बोल रहे हो? Yes, sir, सुनाई हो नहीं गया। दिया? यस सर, हो चुका है। फिर से पूछो, सबका हो चुका है? यस सर। Yes, sir. ओके ओके. Okay, so I'm just stopping the sharing file और मैं अपना एक मिनट वेट कीजिए. So today everybody can see the whiteboard. Yes, sir. So today's session is on 6/5/2022, and we are going to design what? We are going to design a resistive inverter. So let us see the resistive inverter.
So what is the our today's experiment number 2? Experiment number 2 is to design a inverter with resistive pull-up and NMOS pull-down and find the transfer characteristics. इसके बाद आएगा स्कीमेटिक. ओके, स्कीमेटिक मतलब हमारा जो हम ड्रॉ करने जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्कीमेटिक. ये आएगा स्कीमेटिक. अब लैप कॉपी में ऐसे ही लिखेंगे. So first, this is a ground resistance. We are taking only NMOS inverter. Okay, so here will be the NMOS. This is the 5-volt DC voltage supply. This is the ground terminal. This is plus minus 5-volt. There I connect, from this I connect the output, and that is connected with an capacitance which is also connected to the ground. So here I will also connect it at ground terminal, and the body terminal of the MOSFET is also connected to the ground. So what will be the value of the capacitance? The value of the capacitance will be 10 picofarad. 10 picofarad. This is the VDD, supply voltage. This is the output terminal. Okay. This resistance is 1 kilo ohm, and this is 5 ohm.
So this is the circuit diagram or the schematic diagram, okay, for the MOSFET. Okay. Everybody okay with the diagram? Yes, sir. Yes, sir. Enough. Okay. And this is the input where I apply. Okay. Everybody okay? Yes, sir. Yes, sir. So now what we'll do, we will try to use our software. Just a minute. Which software we will use? We will use Tanner Spice. So let me share the screen. Just a minute. So you can see the SADIT file. Everybody? Yes, sir. आप लोगों को दिखाई Yes, दे sir. रहा है? हाँ। तो यहाँ पर हम लोग न्यू करेंगे और फाइल नेम का नाम लिखेंगे यहाँ पर। कोई भी फाइल नेम लिख सकते हैं। मैं ये लिख रहा हूँ ext1। तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए अपना, ये देखिए, सिंबल ब्राउजर। तो सिंबल ब्राउजर से हम लोग लेंगे। तो सिंबल ब्राउजर से हम लोग क्या लेंगे? एक मॉस्फेट एन लेंगे, प्रेस कर देंगे। एक वीडीडी लेंगे, उसको भी प्रेस कर देंगे। एक सोर्स वोल्टेज डीसी लेंगे, प्लेस कर देंगे। ग्राउंड 2 लेंगे, प्लेस कर देंगे, प्लेस कर देंगे। ठीक है। अब इसको मैंने क्या बोला था? ऑल्ट। और अगर मिनिमाइज करना है, जूम आउट करना है, तो ये, तो ऑल्ट से हम लोग लेकर जाएंगे।
ओ रेजिस्टेंस चाहिए था, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ये एक रजिस्टर, कहाँ गया कैपेसिटर, प्लेस कर दिया, रजिस्टर का गया, रजिस्टर रजिस्टर प्लेस कर दिया। तो एज पर द डायग्राम, अगर मैं डायग्राम को शेयर करूं, तो क्या क्या लगेगा देखो, एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटेंस। ओके, तो यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। ओके, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूँ, इसके साथ मॉसफेट कनेक्ट कर देता हूँ, फिर इसको इधर लेकर आता हूँ, तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ। फिर क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे एक ग्राउंड चाहिए और यहाँ पर मुझे एक और ग्राउंड चाहिए। मेरा बात सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, आई एम sir. ऑडिबल? Yes, sir. तो इसको कनेक्ट करेंगे वायर से, फिर इसको कनेक्ट करेंगे वायर से, फिर इसको कनेक्ट कर देंगे, हो गया कनेक्शन। फिर इसके साथ मैं ग्राउंड को कनेक्ट कर दूंगा, हो गया। अच्छा, फिर यहाँ से मुझे आउटपुट निकालना है, तो मैं आउटपुट निकाल दिया। अच्छा, आउटपुट को भी यहाँ से सॉर्ट करना है। अगर मैं फिर से एक बार आप लोगों को वो तस्वीर दिखाऊं, इसको इधर से फिर से सॉर्ट करना है। ओके, कनेक्शन हो गया। ये भी कनेक्शन हो गया। अब है इस वाले को कनेक्शन करना, कनेक्शन हो गया। So my connection is complete. You can see my connection is complete. Okay. ठीक है, connection understand? Do you Yes, sir. understand the connection? Yes, sir. Yes, Okay, sir. now what we have to give? We have to give the values. तो values कहाँ से देते हैं? हम लोग यहाँ से देंगे। रजिस्टर 1 का वैल्यू देंगे, यहाँ पर 50 है, हम लोग 1000 दे देते हैं। अच्छा, ये 5 वोल्ट है,
ये कितना है, 10 पिको फैराड ही है, ठीक है। तो एक बार देख ले, ठीक है। इसके बाद हम देखो यहाँ पर टी स्पाइस लिखा हुआ है, वहां पर हम लोग जाएंगे। तो ये प्रोग्राम चला आएगा, देखो देखो जो प्रोग्राम आया था वो प्रोग्राम चला आएगा। अब हमको कमेंट में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्या कमेंट चेंज करेंगे, देखो यहाँ पर 1K कर देंगे, 1000 नहीं प्रॉब्लम होगा। वन के कर दिया। V4 into ground 5.0, ओके। इसके बाद ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए .op कमेंट दिया है। उसके बाद मुझे एक मॉडल फाइल इंक्लूड करना है। तो मॉडल फाइल इंक्लूड करने के लिए हम लोग जाएंगे इंसर्ट कमेंट पे, इंक्लूड फाइल पे ब्राउज करेंगे। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे मॉडल है, एक मॉडल को हम लोग लेंगे और इंसर्ट कमेंट करेंगे। स्क्रीन लग रहा है। व्हाट इज मॉडल फाइल? हेलो, ये मॉडल फाइल मैंने यहाँ पर लिखा ना आप लोगों के लिए, देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए हमने क्या किया, एक मॉडल फाइल लिखा। ये मॉडल फाइल क्या है? ये है स्पाइस मॉडल फाइल। स्पाइस मॉडल फाइल का मतलब क्या है, जो आप लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जैसे कि एलिमेंट, जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, ये सब एलिमेंट्स को अगर हम उसका डिस्क्रिप्शन जहाँ पर रखते हैं, मतलब जैसे कि हम लोग कंप्यूटर में आपका एक फंक्शन कॉल करते हैं, जैसे कि कोई भी फंक्शन है सी में, तो उसको कॉल करते हैं। तो वो फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, जस्ट वो लिख देते हैं फंक्शन कॉल कर सी इक्वल्स टू समथिंग, पर उसका जो डिस्क्रिप्शन है, उसका डिस्क्रिप्शन पहले से ही किसी और जगह किया हुआ है। वैसे ही model files are those files where we put all the descriptions and all the values of a MOSFET or the elements that we used in the circuit। जैसे कि आप लोग को दिखाए यहाँ पर स्पाइस में NRED में देखते हैं, डेमो में जाते हैं। ये देखिए मॉडल फाइल्स। तो ये मॉडल फाइल 1 जो है, इसको अगर नोटपैड में अगर ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर एनमॉस पीमॉस का सब वैल्यू दिया हुआ है। जैसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज का वैल्यू क्या है, फाई का वैल्यू क्या है, TOX का वैल्यू क्या है, सब का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो मॉसफेट यूज कर रहे हैं, उस मॉसफेट का पूरा डिटेलिंग्स दिया हुआ है। इसीलिए जो मॉसफेट आप यूज कर रहे हैं, उसका जो डिटेल्स है, वो डिटेल्स आप मतलब जो सिमुलेशन प्रोफाइल है वो यहाँ से ले लेंगे।
अंडरस्टैंड? Yes, sir. मैंने क्या बोला सुनाई दिया? हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अजीत, समझ पा रहे हो? सर तब से जो स्क्रीन था वो स्टिल्ड था सर, मूवमेंट्स नहीं हो रही थी, हाँ, ना कोड में ट्रैवलिंग कुछ भी। एक्चुअली देखिए, एक्चुअली क्या हो रहा है, मॉडल फाइल्स है, जब आपका जो सिमुलेशन होगा वो सिमुलेशन कैसा होगा, वो सिमुलेशन मॉसफेट के इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करके होगा। जो आपका VGS का इक्वेशन है या VTH का इक्वेशन है या ID का जो इक्वेशन है उसके ऊपर सिमुलेट करेगा, वो रन करेगा, उसके ऊपर से उसका वैल्यू निकलेगा। तो वो वैल्यू निकलता है तो आपका तो मतलब VTO का वैल्यू देना पड़ेगा, कापा का वैल्यू देना पड़ेगा, या आपका ऑक्साइड कैपेसिटेंस का वैल्यू देना पड़ेगा, तभी तो आपका रिजल्ट आएगा सिमुलेशन का। तो वो वैल्यू कहाँ है? वो वैल्यू ये मॉडल फाइल्स में दिया गया है। इसीलिए आप लोग जब वो ऑपरेशन करेंगे, मतलब बैकएंड में जो सिमुलेशन है, मतलब जो सिमुलेटर है वो तो सिमुलेशन करेगा, तो वो कहाँ से मिलेगा उसका इंफॉर्मेशन? जैसे कि आप लोग जब आप हैश इंक्लूड stdio-h करते हैं, हैश इंक्लूड conio-h करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका लाइब्रेरी फाइल्स में सी का और ऑल पैरामीटर्स वहां पर डिफाइन कर सकते हैं। मतलब जो स्पिन टेप की करते हैं, स्कैनएप करते हैं, या किसी एरे को आप लोग लेते हैं, तो उसका पूरा डिटेल्स आपका वो लाइब्रेरी फाइल में होता है जो हैश इंक्लूड करके आप लोग कॉल कर लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर मॉडल फाइल में आपका मोस्ट पैरामीटर, जो भी मोस्ट पैरामीटर आपने यूज किया है उसका पूरा डिटेलिंग्स रहता है। इसीलिए जब सिमुलेट करता है तो एनमोस पीमोस जो पर्टिकुलर है, रेजिस्टेंस का वैल्यू तो मैं दे दिया हूँ, कैपेसिटेंस का वैल्यू तो मैं दे दिया हूँ, डीसी इनपुट का भी वैल्यू मैंने दे दिया हूँ, VDD का वैल्यू मैं भी दे दिया हूँ, पर जो आपका मॉसफेट का वैल्यू है वो वैल्यू अननोन पड़ेगा। तो वो कैसे ऑपरेशन करेगा? जैसे सिमुलेटर तो उसका तो वैल्यू चाहिए, उसके ऊपर ऑपरेशन करेगा, तो सिमुलेटर मॉडल पैरामीटर से अपना वैल्यू निकलता है। अंडरस्टैंड? यस सर। Drichika, have you understand? Hello? Hello? Yes, Hello? sir. Yes, sir. हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है कहीं पर भी आप लोग समझ नहीं पा रहे हो? No, sir. ओके, तो ये मैंने मॉडल पैरामीटर दे दिया। और डॉट ओपी कमेंट का काम क्या है? डॉट ओपी जो मैंने यहाँ पर लिखा है आपके सामने, ये जो डॉट ओपी कमेंट लिखा है, इसका काम क्या है? What is the operation of dot op? कोई बता सकते हैं? सर वो फाइल का नेम है। यस, डॉट ओपी मीन्स डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट। जब भी हम लोग डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट करना चाहेंगे तो हम लोग डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट, मतलब डीसी वोल्टेज में ऑपरेटिंग पॉइंट एनालिसिस करना चाहेंगे, तब हम लोग करेंगे डॉट ओपी। डॉट ओपी कमेंट का मतलब है जब भी हम लोग डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट के काम करेंगे तब हम लोग उसको डॉट ओपी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
dot op is used for DC operating point analysis. Okay, understand? Sir. Okay. इसके बाद हम लोग डीसी इनपुट करेंगे इंसर्ट कमेंट करेंगे डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट सो हम लोग यहाँ पर डीसी लीनियर सोर्स के लिए कमेंट लिखा है। क्या कर रहे थे देखो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो इनपुट वोल्टेज है, हमारा इनपुट वोल्टेज कहाँ है, हमारा इनपुट वोल्टेज यहाँ पर है, ये वाला। तो ये वाला को वो V4 लिया है, ऑटोमेटिकली ये वाला को वो V4 लिया है। अब देखिए V4 N2 ग्राउंड 5.0, ये क्या लेता है, पहले लेता है इनपुट पोर्ट दैट इज V4, जो नाम है वोल्टेज सोर्स का नाम है V4, इस सोर्स का नाम है V4। अब कैसे देख पाएंगे, अब यहाँ पर जाइए, देखिए यहाँ पर नाम दिया हुआ है V4, ठीक है। सो V4 इज नथिंग बट V4 N2 ग्राउंड 5.0। N2 मतलब जो नोड है, नेक्स्ट नोड है, वो N2 है। कहां से कहां कनेक्टेड है, N2 से ग्राउंड तक, ये वाला N2 है और ये है ग्राउंड। सो इन दोनों में कनेक्शन है, पॉजिटिव टर्मिनल है V4 से और नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड तक। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है V4 स्पेस N2 स्पेस ग्राउंड स्पेस 5.0, 5.0 इज द वैल्यू। जैसे कि C1 is the capacitance name. Please understand this very carefully. C1 is the capacitance name. So it is from C1 to N3 and then ground. So that means C1 is connected between what? This is N3 and this is ground. So positive terminal is N3 and negative terminal is ground. So positive terminal से negative terminal में connection हो रहा है। मैं आप लोगों को अच्छी तरह ये देखने के लिए एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं ये मुझे बताइए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये देखना है कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं।
तो अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को। हमारा जो कमांड है वो कमांड बोल रहा है कि C1 is connected between N3 and ground and it has the value of 10 picofarad. That means this is C1. I don't know why I cannot write. Just a minute. तो हम बोल रहे हैं इसका नाम है C1. Anything cannot be seen here. Sir, your screen is not visible. हाँ, Sir, screen not visible. screen is not visible. Okay, just a minute. एक मिनट. Now you can see. No, sir. No, sir. Now you can see. Yes, sir. Okay. So this is C1. I am telling this is C1. Sorry, just a minute. This capacitance value is C1 and the node value is N3. That means this is N3 and this is ground. Ground has been taken as ground. So how the command will be written? The command will be written as first the C1, that is the name of the component, then the positive terminal, that is N3, then the negative terminal, that is ground, and then the value of the terminal, that is 10 picofarad. So like this the command will be there. Same here, this is V4. This component is named V4 and this node is N2.
and this is ground. So that's why it is written V4 from N2 to ground with a value of 5 volt, 5.0. देखिए अगर मैं स्टॉप करूं, फिर से आप लोगों को वो विंडो शेयर करूं जहां पर आपका प्रॉब्लम है, तो आप देख सकते हैं। देखिए V4 N2 ग्राउंड 5.0, ठीक है, समझ गए? हाँ या ना तो बताओ। Yes, sir. कमेंट कैसे लिख रहा है ये आप लोगों को अलग से सिखा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी आपके पास कमेंट सिर्फ लिखना पड़ेगा। आपका पास वो सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट ग्राफ से वो कमेंट नहीं आ पाएगा। ये टेनर स्पाइस का खूबी है कि आपको स्कीमेटिक से डायरेक्ट कमेंट चले आ रहा है रन करने से। पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि एच स्पाइस अगर यूज करेंगे दोनों अलग प्लेटफॉर्म के लिए, तो एच स्पाइस में प्रोग्राम आपको लिखना पड़ेगा। आपको स्कीमेटिक से प्रोग्राम डायरेक्ट नहीं आ पाएगा, वहां पर स्कीमेटिक प्लेटफॉर्म कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को फिगर भी, मतलब सर्किट कैसे ड्रॉ करना है वो भी सिखा रहा हूँ स्पाइस में, और आपको कैसे प्रोग्राम भी लिखना है वो भी सिखा रहा हूँ स्पाइस में। इसीलिए प्लीज प्लीज ध्यान दीजिए, और कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। जैसे कि नेक्स्ट आप लोगों को एक दिखा देता हूँ, और आप लोग और भी आसान हो जाएगा। आप देखिए M3 N3 N2 ग्राउंड NMOS, M2 N3 N2 ग्राउंड। अब ये कैसे हुआ मैं बोल रहा हूँ, आप लोग देखिए ये मॉस का नाम है। अब लोग ऑलरेडी इस मॉस का नाम बोल गया। इस मॉसफेट का नाम हमने बोल दिया M2, ठीक है। इस मॉसफेट का नाम हमने बोल दिया M2। तो M2 कहाँ से कनेक्टेड है? तो पहले मॉसफेट का नाम मैंने बोला क्या, पहले डिवाइस का नाम, तो मॉसफेट का नाम M2 मिल गया मुझे, हो गया। इसके बाद देखिए ये कनेक्शन कहाँ से हुआ है। देखिए M2 इसका पहले कनेक्शन पॉइंट, तो हम लोग लिखेंगे स्पेस N2। फिर कहाँ का कनेक्शन है, बताइए। N3. मैंने थोड़ा गलती बताया, पहले पॉजिटिव टर्मिनल मतलब सोर्स या ड्रेन होगा, तो पहले होगा N3, उसके बाद गेट आएगा, गेट मतलब N2, उसके बाद क्या आएगा, ड्रेन आएगा, ड्रेन मतलब आपका सॉरी ड्रेन ये है, सोर्स आएगा, सोर्स मतलब आपका है ग्राउंड, उसके बाद बॉडी आएगा मतलब फिर से ग्राउंड। फिर ये चीज क्या है, मतलब पीमॉस है या एनमॉस है, इसीलिए एनमॉस। और उसके बाद आपका एनमॉस का जो पैरामीटर जो मैंने बोला था पहले दिन, ड्रेन एरिया, सोर्स एरिया, एक्सेट्रा, ड्रेन पैरामीटर, ड्रेन ये सब उसका वैल्यू आएगा। विड्थ ऑफ द चैनल, लेंथ ऑफ द चैनल, उसका वैल्यू आएगा। देखिए वही आया, ये देखिए पहले मॉसफेट का नाम M2 है,
फिर जो आपका सोर्स है, सॉरी ड्रेन है, ड्रेन का कंपोनेंट का नाम N3, फिर आपका गेट का कंपोनेंट का नाम N2, फिर आ गया आपका सोर्स का कंपोनेंट वो है ग्राउंड, फिर आ गया बॉडी टर्मिनल का कनेक्शन वो है ग्राउंड के साथ, इसके बाद मॉस का नाम NMOS, उसके बाद लेंथ ऑफ द चैनल 2 माइक्रोमीटर, फिर विड्थ ऑफ द चैनल 22 माइक्रोमीटर, फिर ड्रेन एरिया 66 पिकोमीटर, फिर ड्रेन पेरीमीटर 24 माइक्रोमीटर, फिर सोर्स एरिया 66 पिकोमीटर, फिर सोर्स पैरामीटर 24 माइक्रोमीटर। ठीक है, अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ फिर देखो, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल सर रहे हो? वैल्यू सर हाँ सर वैल्यू फिर से रिपीट कीजिए ना, एनमॉस के बाद सोर्स एरिया ड्रेन एरिया जो एनमॉस बता के रहे हैं। बाद है आपका ये वाला है लेंथ ऑफ, सॉरी ये वाला है आपका लेंथ ऑफ द चैनल L, दैट इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोमीटर। म्यू मतलब है माइक्रोमीटर। उसके बाद है W इज द विड्थ ऑफ द चैनल, दैट इज NMOS। तो उसका लेंथ है विड्थ है 22 माइक्रोमीटर। फिर AD मतलब ड्रेन एरिया ऑफ दैट NMOS, दैट इज 66 पिकोमीटर। माइक्रो के बाद पिको होता है मतलब नीचे वाला, 10 टू द पावर माइनस 3 माइक्रोमीटर इज 1 पिकोमीटर, ऐसा होता है। फिर सोर्स ऑफ द एरिया आता है 66 पिकोमीटर। फिर सोर्स पेरीमीटर, एरिया एक है और एक पेरीमीटर है, फिर सोर्स पेरीमीटर आता है 24 माइक्रोमीटर। अंडरस्टैंड? यस सर। अच्छा, फिर देखो रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है, तो मैं ग्राफ पे दिखाऊंगा, आप रेजिस्टेंस देखो। रेजिस्टेंस है R3, इसका नाम ऑलरेडी ये लोग ले लिया है R3, रेजिस्टेंस का नाम ऑलरेडी ये लोग ले लिया है R3। तो R3 रेजिस्टेंस है। R3 कहां से कहां कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ R3 इज कनेक्टेड विद VDD। सो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे R3, देन लिखेंगे VDD, फिर किसके साथ कनेक्टेड है? N3, फिर उसका वैल्यू 1 के, ऐसा ही शायद है, देखता हूं। हाँ ये देखिए R3 VDD N3, उसका वैल्यू 1 के, और ये TC इक्वल्स टू 0.0, मतलब इस ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का कोई ट्रांस कंडक्टेंस नहीं है, मतलब इस रेजिस्टेंस का वैल्यू सिर्फ 1 किलो ओम ही है। 1 के मतलब 1 किलो ओम, 1 मतलब 1 ओम, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये ओम ले लेता है। 1 के मतलब 1000 ओम दे गए हैं, समझ गए? हेलो। Yes, sir. उसके बाद जो कमांड है DC लीनियर सोर्स का, मतलब हम DC स्वीप करना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग DC ऑपरेटिंग पॉइंट भी ले रहा है, वैसे हम लोग यहाँ पर स्वीप करेंगे। स्वीप करने से हम लोगों का VDC कर्व आएगा, वरना VDC कर्व नहीं है। तो हम लोग स्वीप कैसे कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग जो कांस्टेंट वोल्टेज इनपुट पे दे रहे थे DC वोल्टेज, वो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और उसको फाइनल तक 5 तक लेकर जाएंगे। मतलब हम लोग जब जैसे ग्राफ आने के लिए हम लोग लैब में करते थे ना, हम लोग लैब में क्या करते थे? हम लोग एक कांस्टेंट VGS लेते थे, फिर हम लोग क्या करते थे? हम लोग वो अपना जो वोल्टेज है वो वोल्टेज चेंज करते थे, उसके हिसाब से ड्रेन करंट मापते थे। तो वही हम लोग क्या कर रहे हैं,
हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं। वोल्टेज को कैसे चेंज कर रहे हैं, 0 से 5 वोल्ट तक चेंज कर रहे हैं। मेरा हाईएस्ट पैरामीटर है 5 वोल्ट, मिनिमम है 0, वोल्टेज पॉइंट है, सोर्स पॉइंट है V4, और उसको कैसे वैरी कर रहे हैं, 0.1 वैरी कर रहे हैं। और लीनियर मतलब क्या है, मतलब LIN मतलब क्या है, लीनियरली वैरी कर रहे हैं। देखिए अगर आप लोग मैथमेटिक्स जानते हैं तो मैथमेटिक्स के लिए आप लोग जानेंगे, हम किसी भी अगर वैल्यू को वैरी कर सकते हैं तो बहुत सारे एनालिसिस स्वीप कर सकते हैं, बहुत सारे स्वीप कर सकते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से। जैसे हम लोग लीनियर स्वीप कर सकते हैं, वैसे हम लोग क्वाड्रुपल स्वीप कर सकते हैं, वैसे हम लोग मोंटी कार्लो स्वीप कर सकते हैं। तो ये क्या है, मैथमेटिकल टर्म ऑफ स्वीपिंग वन वैल्यू फ्रॉम अनदर वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर लीनियर स्वीप करेंगे, कोई और मैथमेटिक्स नहीं इन्वॉल्व करेंगे, इसीलिए हम लोग लीनियर स्वीप किए। सो डीसी एनालिसिस हम लोग कैसे कमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, हम लोग एडिट पे जा रहे हैं, हम लोग इंसर्ट कमेंट पे जा रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर बहुत सारे एनालिसिस है, तो हम लोग क्या एनालिसिस करना चाहते हैं, डीसी ट्रांसफर स्वीप एनालिसिस करना चाहते हैं। तो डीसी ट्रांसफर स्वीप में गए, स्वीप 1 पे गए, तो यहाँ पर स्वीप टाइप देखिए कितना है, लीनियर है, डिकेड है, ऑक्टेव है, लिस्ट है, पॉय है, डेल्टा है, डाटा है, मोंटी कार्लो है, ऑप्टिमाइजेशन है, इतना है। तो हम लोग लीनियर करेंगे। अब पैरामीटर का नाम क्या है, पैरामीटर है हमारा सोर्स। कोई मॉडल पैरामीटर को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ सोर्स को चेंज कर रहे हैं, तो इसीलिए सोर्स का नाम दिया। अब सोर्स कौन सा है, V4 है। यहाँ पर देखिए जो हमारा वोल्टेज सोर्स है उसका नाम V4 है, तो मैंने उसका ही नाम दिया। फिर स्टार्ट वैल्यू दिया, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 0 से। स्टॉप क्या होना चाहिए, 5 वोल्ट से, मतलब 5.0। अब इंक्रीमेंट क्या होना चाहिए, 0.1 से इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स भी हो, आप लोग दे सकते हैं, पर हम लोग छोड़ दिए, हम नहीं देंगे। उसको एक्सेप्ट करने से आपका ये कमेंट चला आएगा। अंडरस्टैंड? यस सर। सर आपका स्क्रीन कांस्टेंट हो गया है। क्या हो गया, सर आपका स्क्रीन ना स्टेबल रुक गया है। आप देख पा रहे हो, अब ठीक है। यस सर। अच्छा, तो ये है डीसी लीनियर सोर्स का कमेंट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग, हमारा प्रोग्राम क्या था, प्रोग्राम था हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना चाहते हैं। तो इसीलिए ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना चाहने के लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं। इसको अगर रन करते हैं तो देखते हैं, इसका नाम हम चेंज कर रहे हैं, इसका नाम हम एक्सपेरिमेंट 1 करना चाहते हैं।
कुछ प्रॉब्लम हुआ है, देख रहे हैं। Just a minute. वार्निंग आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? फाइल ओपन, ऑल फाइल, अच्छा दो टोपी हम लोग चेंज कर देते हैं। फिर कर देते हैं, VDD का एक वैल्यू देते हैं। VDD to एक मिनट, थोड़ा एरर हुआ है, आप लोग है तो सुनाई दे रहा है तो? यस सर। Yes, sir.
आउटपुट में कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, और एक बार करता हूँ। ओपन ऑल फाइल्स, ओपन 5.0 करते हैं। .dc इसको अगर चेंज करें, एडिट इंसर्ट कमांड, insert files, include files, browse, extrude, ये आ गया आपका आउटपुट। ओके, सर प्रोग्राम में जो लास्ट 2 स्टेप थे वो क्या किए थे आप? प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्या हो रहा था वो पहले बताता हूँ मैं। प्रोग्राम में हमने जो गलत किया था वो प्रिंट देने के लिए भूल गया था। प्रिंट कमांड है ग्राफ प्लॉट करने की कमांड। जैसे कि आप लोग
प्रिंट एफ करते हैं फिर किसी को अब आउटपुट दिखते हैं, वैसे हम लोग प्रिंट करने से ही आपको वो वोल्टेज एनालिसिस दिखेंगे। तो इसीलिए मैंने प्रिंट वी ऑफ एन3 किया। और टीएफ मतलब ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन मतलब हम लोग ट्रांसफर फंक्शन जो निकालना चाहते हैं, जो अपना एनालिसिस वीटीसी कार्ड निकालना चाहते हैं, उसके लिए ट्रांसफर फंक्शन है। तो वो कौन सा है ना, वो है आपका जो M3 का वोल्टेज है, वो उसके साथ हम लोग V4 का एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, V4 और M3 का एनालिसिस। M3 मतलब मेरा आउटपुट वोल्टेज है। अगर आप सर्किट पे देखेंगे तो ये मेरा आउटपुट वोल्टेज है, तो ये M3 पोर्शन है। और इसके साथ हम लोग V4 को एनालिसिस करना चाहते हैं, मतलब आउटपुट को इस एनालिसिस के चलना चाहते हैं। क्योंकि हमारा जो ग्राफ होता है वो आप लोग देखेंगे, जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था वो V आउट बाई V इन था। जब हमने VTC कार्ड ड्रॉ किए थे वो है V आउट बाई V इन। तो यहाँ पर आउटपुट कौन सा है, आउटपुट है ये जो नोड है, ये M3 वाला नोड, ये M3 नोड का वोल्टेज है आउटपुट। और इनपुट क्या है, हम लोग V4, क्योंकि ये इनपुट एक वोल्टेज सप्लाई है इसीलिए V4 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। पर यहाँ पर नोड है M3, ये नोड का नाम है, इसीलिए V ऑफ M3 हम लोग लिख रहे हैं प्रोग्राम में। ठीक है, यस सर। और क्या पूछना था बताइए। हम अगर आउटपुट फाइल को एक बार देखें तो हम आउटपुट फाइल में वैल्यू भी आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये है वोल्टेज सोर्स का वैल्यू, देखिए V4 और VDD। ये देखिए V4 का वैल्यू और V ऑफ N3 का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने 0 वोल्टेज दिया था, तब आउटपुट में 5 वोल्टेज आ रहा था। e टू द पावर माइनस 001 मतलब 10 टू द पावर, ओके। e मतलब 10 टू द पावर, प्लस होगा तो प्लस पावर, माइनस होगा तो माइनस पावर। तो ये है 10 टू द पावर 1 माइनस 1। तो ऐसे ही देखो वैल्यू जा रहा है। ठीक है, यस सर। और कुछ पूछना है किसी को। सर सर थोड़ा सा बोलो। ये V4 का वैल्यू लास्ट कहाँ तक वेरी किए हैं? V4 का वैल्यू वेरी किया है 0 से 5 तक, 0.1 कर वेरी कर रहे थे। उसके हिसाब से मुझे V3 का वैल्यू लेना था। यही है ट्रांसफर एनालिसिस। तो देखिए, ये देखिए V4 का वैल्यू सर इसमें 9 तक वेरी किया हुआ है, नीचे हाँ? देखिए 9 तक वेरी आप किए हैं सर। नहीं 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 नहीं, ये तो 10 टू द पावर माइनस 1 है। 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, e टू द पावर माइनस 001 मतलब है 10 टू द पावर माइनस 1, मतलब पॉइंट पे आ रहा है। समझ गए? यस सर। यहाँ से 1 वैल्यू आ रहा है, यहाँ से 1। इसके बाद 1.1, ये था 0, ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3। अब देखिए VTC कार में क्या है, पहले वो कांस्टेंट रहता है इसीलिए आउटपुट में
हमेशा हमको हाई वोल्टेज मिल रहा था। जब इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा, ये देखिए बढ़ रहा है, तब देखिए आउटपुट वोल्टेज कम रहा है। आहिस्ता आहिस्ता देखिए आउटपुट वोल्टेज कम हो रहा है। जितना ज्यादा इनपुट वोल्टेज बढ़ रहा है, 3.9 तक गए थे, ये देखिए 5 पॉइंट गए थे। जब इनपुट वोल्टेज एकदम 5 हो गया तो ये हो गया 0.08 पे चला गया। ये है 0.78। अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. अजीत समझे? अजीत सो गया क्या? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको प्रिंट करेंगे। तो इसका प्रिंट स्क्रीन ले लिया, इसके बाद एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोलेंगे। और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूंगा। ये भी कर सकते हो, और एक प्रॉब्लम है आप लोग कर सकते हैं एकदम से। अब इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं स्निपिंग टूल से। पहले ये थोड़ा सेव कर देता हूँ मैं, कि आप लोगों को आज देंगे हम। ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, सर्किट एनालिसिस। पहले आप लोगों को ये स्निप करना पड़ेगा यहाँ से, फिर आपको ये प्रिंट करना पड़ेगा। फिर से रुक गया। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपका स्क्रीन फिर से रुक गया है और कुछ भी शो नहीं कर रहा। एक मिनट।
ये है आपका एक्सपेरिमेंट 1 का आउटपुट। और ये है आपका सर्किट डायग्राम। इसको भी आपको स्निप करना पड़ेगा। सर्किट डायग्राम। तो इसको क्या करेंगे, फिर से पेन से ओपन करेंगे, फाइल, ओपन, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे छोटा करके, इन्वर्ट कलर करो, फिर इसको सेव करो। फिर आएगा आपका प्रोग्राम पोर्शन। ये तो आउटपुट है, इसका जो प्रोग्राम है ये वाला है। इसका भी स्निप करो। एक काम करते हैं, ये प्रोग्राम आपको वर्ड में दे। ओके, तो इसको हम कर लेते हैं।
So this is my experiment 1, and I want to format the background. Sorry, no, it is okay. Okay. So I am just going to share this thing. And I will give you to you. So इस प्रोग्राम के लिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? हेलो, No, sir. आर यू देयर? आर यू देयर? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रॉब्लम है अभी तक? सर अगर हम लोग करना चाहेंगे तो कौन सा ऐप इंस्टॉल करेंगे? आप लोगों को वहां पर जाकर LT स्पाइस इंस्टॉल करना पड़ेगा या टैनर EDA टैनर T स्पाइस डेमो इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप अगर आपका ये क्या बोलते हैं, गूगल पे जाकर टाइप करना टैनर स्पाइस डेमो, तो आपको ये डेमो वर्जन सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? सर टेनर स्पाइस डेमो और एक स्टार्टिंग में क्या बोले थे LT? LT स्पाइस भी हो सकता है, पर अगर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को शेयर कर कर, अगर आप देखें यहाँ पर आप लिखेंगे टैनर स्पाइस डेमो, ये देखिए, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर नहीं दिखा रहा है।
अरे ये तो नहीं दे रहा है। एक काम कीजिएगा, मेरे पास डेमो वर्जन है, तो मैं किसी एक का, आप लोगों में कोई किसी का एक मेल आईडी मुझे देना पड़ेगा, उसका मेल आईडी पे मैं ये सॉफ्टवेयर आप लोग दे दूंगा ड्राइव शेयर करके। और किसी के पास, जिसके पास घर में मतलब ब्रॉडबैंड हो या किसी का सुविधा हो, तो प्लीज वो डाउनलोड करके दे दीजिए। ये थोड़ा ही होगा, छोटा सा स्पेस होगा, ये कितना होगा, 14-15 MB का सॉफ्टवेयर होगा, तो वो इस्तेमाल कर सकता है। अंडरस्टैंड? यस सर। तो दीक्षिका, तुम्हारा पास, तुम डाउनलोड कर पाओगे? अगर मैं आप लोगों यस सर, हो जाएगा। अच्छा, तो मैं दीक्षिका को वो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये भी हो सकता है कि आप लोगों को दीक्षिका वो भी शेयर कर सकता है किसी, अगर आप मतलब जीमेल पे तो नहीं जाएगा वो, आपको वो किसी और प्लेटफॉर्म में देना पड़ेगा, मतलब टीम व्यूअर से भी शेयर कर सकते हो, या क्या बोलते हैं, कुछ और से भी शेयर कर सकते हो, या आपका ड्राइव शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो थैंक यू फॉर दिस क्लास। ये सब कुछ आप लोगों को मैं जो भी आज का क्लास हुआ है वो शेयर कर दूंगा। आप लोग टीचमिंट से वो डॉक्यूमेंट्स देख लेना। और ये जो पिक्चर है, ये सर्किट डायग्राम हाथ में से ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके बाद प्रोग्राम जो दिया वो प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, और उसके बाद ग्राफ को आपको देना पड़ेगा। ऐसे ही आप लोगों को सबमिट सर्किट करना पड़ेगा नेक्स्ट दिन से। ठीक है, ओके सर। ओके सर। so thank you for the class. Thank you. थैंक यू सर। I am ending the class.